Focus now and talk about the state of Maharashtra, where murder of one of the most high-profile and influential politicians that has shocked the country, as 3 people till now, according to latest reports, have been arrested in connection with the murder plot of Baba Siddiqui, and one accused, Mohammad Zishan Akhtar, who is said to be the mastermind, is still absconding. The police are looking into the involvement of multiple people from multiple states. As far as this murder plot is concerned, 3 arrested individuals include Gurmail Baljeet Singh from Haryana, Dharamraj Kashyap and Praveen Lonkar. The Times Now is also learning that Gurmail, Dharamraj and Shiv Kumar were present at the spot of the time of the shooting. However, Shiv Kumar, who hails from UP, and Mohammad Zishan Akhtar, who is said to be the alleged mastermind of this murder plot, is said to be on the run. एक्यूज के पास से 2 पिस्टल और 28 राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली है। इस हादसे में इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आप सभी को बाद में दे देंगे, लेकिन घटना नटशेल में मैं बता देता हूं कि जब वो उनके बेटे के ऑफिस से के बाहर आए और कहीं जा रहे थे, उसी वक्त ये फायरिंग हुई है। हमलावर जो थे वो 3 थे, उसमें से 2 हमलावरों को तुरंत ही पकड़ने में हमारी मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स और कर्मचारियों को सफलता मिली। प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स पे जिन लोगों ने फायरिंग की है वो 3 लोग थे, उसमें से 2 पकड़े गए और 1 फरार है, उसका सर्च शुरू है। तो लेकिन रिमांड एप्लीकेशन में कहा गया कि एक और आरोपी की भी तलाश, 2 आरोपियों की तलाश। अब रिमांड एप्लीकेशन में क्या चीजें बोली गई है ये यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बोल सकता, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन एक एक्यूज घटनास्थल से निकल चुका है। But who is behind the murder of Baba Siddiqui? Who gave the supari or contract for this killing? As though the police are looking at several angles, the focus is currently on the ongoing Bishnoi gang link. A Facebook post by an alleged member of the Lawrence Bishnoi gang names both Salman Khan and Daud gang. In this post, which is now being authenticated by the Mumbai police, the alleged Bishnoi gang member claims that those who are seen or helping Salman Khan or Daud gang will have to pay. Now, the brother of the man who is behind this Facebook post has now been arrested, Praveen Lonkar, and he is not emerged that even when it comes to the NCP leader who had already received death threats just 15 days ago. So what gives a lot of credence is to Bishnoi angle and the alleged threat that Salman Khan has also faced from the gang over the last several years, because it was in 2018 when an associate of Bishnoi gang had admitted to the plot of killing Salman Khan. Lawrence Bishnoi himself had admitted his goal was to kill Salman Khan. In 2022, if you remember, a threat letter that has been sent to Salim Khan, and in 2023, early in the morning, gunshots were fired outside Salman Khan's residence. However, the police have arrested the brother of the man who made that Facebook post, Shubham Lonkar, and the Bishnoi link has emerged as well. Sources suggesting that Shubham was also in touch with Lawrence Bishnoi and his brother Anmol Bishnoi, and the investigations has revealed that he also played a big role when it comes to planning the murder of Baba Siddiqui. गुरमेल, धर्मराज और शिवा, ये 3 जो आरोपी जिन्होंने बाबा सिद्दीकी के ऊपर हमला करके उनकी हत्या कर दी, कुरला के जिस रूम में रहते थे, हम इस समय वही जगह पर पहुंचे हुए हैं। आप इस जगह को एक तरह से कंट्रोल रूम कह सकते हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि पूरी की पूरी साजिश रची गई थी और रेकी करने के बाद ये तीनों आरोपी इसी कमरे में रहते थे। अभी कमरे की क्या स्थिति है वो आप तस्वीरों में देखें। यहाँ पर जो गद्दा आपको दिखाई दे रहा है, 2 गद्दे के अलावा सिर्फ कपड़े यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उसके अलावा कोई भी चीज यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। केवल मिठाई का डब्बा यहाँ पर आपको सामान के रूप में दिख जाएगा, और जो खाने पीने की खास तौर पर जो पानी के बॉटल्स हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे, और एक हेलमेट अंदर रखा हुआ यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिख जाएगा। और जो चप्पल यहाँ पर रखे हुए हैं उस पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि जो एकमात्र तस्वीर तीनों के साथ में आई है मुंबई के जुहू बीच से, उसमें जो आरोपियों ने चप्पल पहना हुआ है वो आपको यहाँ पर तस्वीर में साफ दिख जाएगा, जो तस्दीक देती है कि वो तीनों यहाँ पर ही रहते थे। और जब पुलिस ने इस लोकेशन को ट्रेस किया पूछताछ के बाद, तो फिलहाल अभी ये रूम लॉक कर दिया गया है। और जो स्थानीय जो आसपास पड़ोस में लोग रहते हैं उन्होंने बताया कि 2 महीनों से वो यहाँ पर रह रहे थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे, कब आते थे कब जाते थे कुछ पता नहीं चलता था। एक शख्स जिसने सिर्फ 3 आरोपियों में से एक को देखा था, पहचाना था, उससे सिर्फ एक ही बार बात हुई थी, जिन्हें वो अक्सर
यहाँ पर सिगरेट पीते हुए देखते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस जगह पर इतना बड़ा जो क्राइम था उसे करने के लिए तीनों आरोपी आते हैं। सारी षड्यंत्र यहीं इसी कमरे में रची जाती है। रेकी करने के बाद आकर यहीं पर ठहरते थे, प्लानिंग सारी चीजें बनती थी। और इंटेलिजेंस मुंबई पुलिस की क्यों फेल हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब विपक्ष इसी सारी चीजों को लेकर सवाल उठा रहा है। हालांकि इस मामले में 3 गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं। बाकी के 3 आरोपियों की तलाश में क्राइम ब्रांच की कई सारी टीमें अलग अलग राज्यों में दबिश दे रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत, मुंबई।